Good morning, students. Once again, we are back. We are back with one more video lecture. Last time when we met in the previous video lecture, we were discussing about 12th chapter. I hope you remember, right? Area related to circle. We have completed 4 chapters before this, and this is 5th chapter from my side, right? I think you remember. We have completed statistics, we have completed probability, we have completed constructions, we have completed circles, and this is the 5th one, area related to circle. As per textbook, it is 12th chapter. Why I am reminding you this every time when I start the video lecture is just to make you aware that you practice again and again. Okay? Now before we start today's session, I just want to remind you that whenever you get any video, you get it from the school's YouTube channel. So it is your responsibility, moral responsibility, that whenever you start any video, first of all you press the button of subscribe. So first of all, subscribe the channel of our school so that you get regular notifications of which videos are uploading and you don't miss any of them. Okay, so do subscribe before you start learning. If you have already done it, it's one-time process. You don't need to do it every time. If you are already done it, it's okay. But if you are still not subscribed our channel, please subscribe the channel, right? Okay. So now let's start today's session. Last time, as I said, we started the chapter area related to circle. There were 3 exercises. When we have seen the full chapter, there were 3 exercises. 3 exercises थे वहाँ पे. पहली exercise, it was about area and perimeter. या circumference of a circle, वो छोटे स्टैंडर्ड में जो आता था, the same topic, right? So we have studied 2 formulas, area of circle pi r square and circumference of circle, that is 2 pi r. We have learned both of them, right? And we have done sums also on the basis of these formulas. This was very simple exercise, only 5 questions were there in the first exercise. Now we are going to start second topic, and this is the main topic, this and the next exercise also. In examination, both topic have one sum each from each exercise. So both exercises are very important. So let's start today's session. The name of the topic, it is area of sector and segment of circle. 2 नए वर्ड आ रहे हैं इस चैप्टर की डिक्शनरी में. One is sector and second is segment. First of all, you must be knowing the meaning of these words. As I keep on telling you every session, your concepts must be clear. So first of all, you must make your concepts clear and then you should go for sums. So to make your concept clear, you must be knowing the meaning of each and every word. Area, sector, segment, circle. You already know the meaning of the word circle. You already know what is area. But this time we want to learn area of not circle, sector and segment of circle. So what are they? पहले उनके बारे में discussion करते हैं. So first of all, we'll talk about sector. We will write the formulas also, and then we'll start the exercise. Okay? So see what is sector and what is segment. I have drawn one circle. Okay? Suppose the center of this circle is O. Suppose the center of this circle is O. Suppose there are 2 points on the circle, one over here A and one over here B. These are the 2 points on the circle. O is the center of the circle and these are the 2 points on the circle. Now suppose I join OA, तो ये radius बनेगी. Suppose if I join OB, ये भी रेडियस बनेगी. ओके, तो अब जो ये पिक्चर रेडी हुआ आपके सामने, उसमें जो ये पोर्शन है छोटा वाला, ये नीचे वाला पोर्शन, ओ से लेके ए से लेके ऐसे बी और बी से लेके वापस ओ, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड माइनर सेक्टर. सेक्टर में भी 2 टाइप है, मेजर एंड माइनर. सो दिस इज माइनर सेक्टर. और इसको छोड़ के बाकी जो बाकी रहा, ये वाला पूरा इतना,
This is called major sector. This is called major sector. So sectors are nothing but part of the circle. सर्कल का जो एरिया होता है अंदर का, उसके ही दो टुकड़े हैं. एक छोटा वाला टुकड़ा माइनर सेक्टर और बड़ा वाला. अब छोटा और बड़ा से मतलब है सेंटर से नीचे का पार्ट यहाँ का. पहले वो पार्ट यहाँ भी हो सकता है ना. तो ये छोटा सा पार्ट जो है वो माइनर सेक्टर और बड़ा वाला जो पार्ट है वो मेजर सेक्टर. सो सेक्टर्स आर टू पार्ट्स ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है हमको, पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर के ही दो हिस्से हैं. ओके. अब इनको ढूंढने के फॉर्मूलास हैं. इनको ढूंढने के लिए स्पेशली फॉर्मूलास हैं. अगले एक्सरसाइज में ऐसे सम्स आएंगे. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. ये तो उसको ढूंढने का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू area of minor sector equals to theta by 360 multiplied by pi r square. Theta by 360 multiplied by pi r square. This is the formula to find ये छोटा वाला minor sector जो है उसका एरिया ढूंढने के लिए फॉर्मूला है ये. तो फॉर्मूला में कौन कौन है पहचानो. r तो ये रेडियस होती है, पहचानती हूँ. पाई यू ऑल्सो नो इट, 22/7. अभी थीटा कौन है. तो यहां जो एंगल बन रहा हो, दिस एंगल, दिस इज एंगल थीटा. वो मेजरमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, वो हमको यहां पुट करना है. 60 डिग्री या 90 डिग्री या व्हाटएवर. ओके. सो दिस इज थीटा, दिस वन. रेडियस तो पता होती है हमको. तो ये फॉर्मूला से मिलेगा सिर्फ इतने छोटे से पार्ट का एरिया. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. अब कोई पूछे तो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ढूंढो, तो क्या फॉर्मूला है. तो उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इसमें से ही बनेगा. कैसे देखिए. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये बड़ा वाला, ये अगर ढूंढना हो तो करना ये है आपको कि पहले तो पूरा सर्कल जो होता है उसका एरिया, जो पिछली एक्सरसाइज में आ गया, क्या था वो, पाई आर स्क्वायर. पूरे सर्कल का एरिया अंदर का. अब आप कॉमन सेंस अप्लाई करें. पूरे सर्कल के अंदर के एरिया में से अगर आप ये छोटा सा पार्ट निकाल दें तो जो बाकी बचेगा वो मेजर सेक्टर ही होगा. सो ये पूरे का एरिया, उसमें से माइनर का निकाल दो. माइनर का यानी कौन सा, ये रहा फॉर्मूला. सो माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. दिस वन, ये फॉर्मूला हो गया मेजर के लिए. सो मेजर सेक्टर हैज नो सेपरेट फॉर्मूला. उसके लिए फॉर्मूला बनता है ऐसे कि पूरे सर्कल का ढूंढ लो, उसमें से माइनर का जो ढूंढा है वो माइनस कर दो. इन शॉर्ट मेजर का पूछा हो तो माइनर का पहले ढूंढना ही पड़ेगा, तब जाके मेजर का मिलेगा. ओके, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. और जो फॉर्मूलाज आएंगे इसी के साथ वो कुछ इस टाइप के होंगे. ये हो गई बात किसकी, सेक्टर की. दिस टॉपिक इज डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंट. ओके, व्हाट इज सेगमेंट. सेक्टर पढ़ लिया हमने, अब हम बात करेंगे सेगमेंट की. सेगमेंट क्या होता है, तो उसके लिए भी सबसे पहले सर्कल बनाना पड़ेगा. तो ये बना दिया मैंने सर्कल. पिछली बार की तरह ओ ए ज्वाइन किया, ओ बी ज्वाइन किया, मतलब ओ सेंटर है, ए और बी दो सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन कर दिया. एक और चीज यहां ज्वाइन की जो इसमें नहीं थी. इसमें आप देखिए ए से लेके बी तक ज्वाइन नहीं था, यहां पे ए से लेके बी तक को भी ज्वाइन कर दिया. तो अंदर एक ये ट्राइंगल बन गया पूरा. अब सेगमेंट क्या होता है, तो जो मैंने यहां लाइनिंग की है नीचे, अंडरलाइन, दिस वन, शेडिंग जो की है, वो सेगमेंट है. सिर्फ इतना, ट्राइंगल नहीं, ये पूरा भी नहीं, इतना सिर्फ, ये नीचे का पार्ट, ये है सेगमेंट. तो वैसे अगर कहने जाए तो सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए सेक्टर. उस सेक्टर का ही हिस्सा है. देखिए ये सेक्टर तो इतना पूरा था, तो यहां से लेके यहां तक और ये अंदर, ये पूरा अगर आप ले लो तो सेक्टर है. लेकिन नीचे का वो छोटा सा पोर्शन लो तो वो सेगमेंट है.
ओके, तो इतना पार्ट हुआ सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो भी इसी फॉर्मूला से बनेगा। कैसे? इस तरीके से। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, ये माइनर है जो अंडरलाइन किया हुआ है, और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, मतलब इसके अंदर ट्राइंगल भी आ जाएगा, यहां से लेके ये पूरा पोर्शन, ये हो गया मेजर ट्राइंगल। ओके, तो माइनर का अगर एरिया ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? तो फॉर्मूला देखिए माइनर का सेगमेंट का, तो जैसे मैंने कहा सेगमेंट है तो हिस्सा सेक्टर का, तो सेक्टर का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पूरे सेक्टर का फॉर्मूला। इस सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल को निकाल दिया जाए तो यही बाकी बचेगा जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, शॉर्ट में लिखते हैं एरिया को ए आर, सो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो पूरे सेक्टर का पहले ढूंढ लो, उसमें से ट्राइंगल का भी ढूंढो अलग से, फिर दोनों को माइनस करो तो जो बचेगा वो होगा सेगमेंट। ओके, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब कोई पूछे तो मेजर सेगमेंट, सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू, तो इसकी तरह जैसे पूरे सर्कल का ढूंढ के फिर ये निकाल देते थे तो यही बचता था, वैसे ही अगर पूरे सर्कल का वापस से ढूंढ लिया जाए पाई आर स्क्वायर और उसमें से माइनस कर दिया जाए ये सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो जो बचेगा वो मेजर सेगमेंट ही होगा। मतलब उसके अंदर तो ये ट्राइंगल भी इंक्लूड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा जितना मेरा यहां हाथ दिखाई दे रहा है। सो पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का निकाल दो तो पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का, उसमें से ये सब माइनस कर दो। तो ये सब ना लिखना हो तो सिर्फ इतना लिख देते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब मेजर ढूंढना हो कभी भी तो पहले माइनर तो ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे वो सेक्टर हो चाहे वो सेगमेंट हो। अगर आपको मेजर ढूंढना है कोई भी तो पहले माइनर ढूंढना ही है, उसको पूरे सर्कल में से माइनस करना है। तो ये 1 2 3 4 फॉर्मूला हुए, एक और आखिरी फॉर्मूला बाकी है जो टॉपिक के नाम में नहीं आता लेकिन सम्स में आता है, वो है ये, मैं यहां लिखता हूं, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर्क वर्ड हम बहुत बार बोलते हैं जब कंस्ट्रक्शन बनाते थे, है ना? तो ये क्या है लेंथ ऑफ माइनर आर्क? तो पहले तो आपको मैं फिगर के हिसाब से दिखा दूं वापस से। तो यहां मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, सेंटर ओ, पॉइंट ए एंड बी। अब इनको ज्वाइन नहीं करना है कुछ भी, ना ओ को ए के साथ ना ओ को बी के साथ। आर्क है ये, आर्क तो सर्कल का बाउंड्री होता है ना, आर्क उसका ही एक हिस्सा होता है। सो ये ए से लेके बी तक ये इतना पार्ट, इतना, ये छोटा सा है तो इसको माइनर आर्क बोलेंगे। और अगर ए से बी यहां से घूम के आओ तो वो मेजर आर्क होगा। तो उसकी लंबाई कितनी हो, लेंथ। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो वो इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है, इट इज थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, थीटा बाय 360 यहां भी था इंटू वहां पाई आर स्क्वायर था, यहां 2 पाई आर है। तो याद रखने में आसान रहेगा क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला था, तो एरिया में तो वैसे भी पाई आर स्क्वायर ही आता है। और ये आर्क है, आर्क मतलब वो सर्कमफरेंस का हिस्सा होता है, तो सर्कमफरेंस तो वैसे भी 2 पाई आर होता है, तो ऐसे याद रखने में आसानी रहेगी। ओके, सो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। और ऐसे ही अगर मेजर ढूंढना हो तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क,
तो जैसे हमने कहा मेजर कहीं भी ढूंढना हो तो पहले माइनर तो ढूंढना ही पड़ेगा और फिर पूरे सर्कल में से उसको माइनस कर दो। तो क्या यहां भी पहले पाई आर स्क्वायर आएगा जैसे यहां आता था? नहीं, क्योंकि वो तो अंदर की बात थी, वहां पे एरिया थी। ये तो सरकमफ्रेंस की बात है, मतलब माइनस तो करना है लेकिन 2 पाई आर में से करना है। 2 पाई आर होता है पूरे की लंबाई, पूरे सर्कल की, उसमें से इतना निकाल दो, मतलब ये वाला निकाल दो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। पहले इस लेंथ ऑफ माइनर आर्क को ढूंढो, फिर पूरे सर्कल की लेंथ ढूंढो और माइनस कर दो, तो मिल जाएगा आपको लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ओके, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आर्क की लेंथ ढूंढने के लिए। तो अब तक हमने 6 फॉर्मूलाज के बारे में टोटल बात की, सबके सब सामने लिखे हुए हैं। आपका पहला तो काम ये रहना चाहिए कि आप ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से नोट डाउन कर लें। कौन कौन से याद करवा दूं, बोर्ड पे देखते रहिएगा। नंबर 1 सेक्टर, उसमें माइनर और मेजर पिक्चर जरूर ड्रॉ करें। फिर सेकंड सेगमेंट, उसमें भी मेजर और माइनर। थर्ड आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, उसमें भी मेजर और माइनर। 3 चीजें, तीनों में माइनर मेजर तीनों। तो हर एक में माइनर के लिए फॉर्मूला है, हर एक में, और मेजर के लिए ढूंढना हो तो पूरे सर्कल का ढूंढ लें, चाहे एरिया हो चाहे लेंथ, और फिर उसमें से माइनर का माइनस कर दे। यही हर बार लॉजिक रहेगा। So these are the 6 formulas you should first remember. You should write it down in your CW book. जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको अच्छे से पॉइंट वाइज फिगर ड्रॉ करके CW बुक के अंदर लिख दीजिए सारे फॉर्मूलाज। जब तक ये फॉर्मूलाज याद नहीं हो जाते तब तक आपको रफ बुक में एक बार लिखने चाहिए, 1-2 बार। एक बार ये याद हो गए फिर ही आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, तब तक एक्सरसाइज शुरू करने का कोई सेंस नहीं है। ओके, तो ये हैं कुछ फॉर्मूलाज जो मैंने आपको पहले बताया। अब आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज होगी अब 12.2। इस 12.2 के अंदर कुल मिला के 14 सम्स हैं, 14। Let's start them one by one. Okay, let's see what the first sum is all about. 14 सम्स को लेते हैं one by one, जितना टाइम परमिट करता है। So I am taking the first sum right now, ताकि आपको फॉर्मूलाज को देख लिए 1-2 सम हो जाए तो आइडिया आ जाए ज्यादा अच्छे से कि सम्स में कैसे पूछा होगा। So I am taking exercise 12.2. Exercise 12.2. Question number 1 I am taking. I am reading the question. It says find the area of sector, जो सबसे पहले सीखा हमने, of a circle with radius 6 centimeter and the angle of sector is 60 degree. तो डेटा लिखें पहले, radius is 6 centimeter and angle theta is 60 degree, और पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढो। अब एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढो तो आप पूछेंगे सर लिखा तो है नहीं कि मेजर ढूंढो या माइनर ढूंढो, तो नहीं लिखा हो तो दोनों ढूंढने हैं फिर। ओके, दोनों ढूंढ देने, कौन सा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। ऑब्वियसली मेजर ढूंढना होगा तो पहले माइनर तो चाहिए। सो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले सीखा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करें, थीटा इज 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू ऑलवेज पुट 22/7। वैसे 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, पर 3.14 जब तक ना गिवन हो तब तक 22/7 ही पुट करें। कुछ ना गिवन हो तो भी 22/7 ही पुट करें। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर इज 6, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ लेट्स कट दिस वन, इसको कट करते हैं। तो ये 6 कट हो जाएगा यहाँ, 6 into 60 तो होता है 360। फिर ये 60 पूरे का पूरा कट हो जाएगा, है ना।
तो बाकी बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 6 जो होता है 132 और अपॉन में एक नंबर रह गया 7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। सो 132 बाय 7 ये आंसर आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसको पॉइंट में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं करेंगे, लास्ट में जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। अब हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, जो पूरे सर्कल का एरिया होता है, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का माइनस कर दो पूरे में से, तो ये तो ढूंढ के रखा है ना हमने, ये रहा, तो वो तो सीधी वैल्यू पुट करेंगे, ये सिर्फ ढूंढना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, पाई 22 बाय 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस ये हो जाएगा 132 बाय 7। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों में 7 ही एलसीएम होगा, दोनों के पास 7 है, तो सिर्फ जो आपको करना है उसको मल्टीप्लाई करना है, 132 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आएगा 792। 22 इंटू 6 132, 132 इंटू 6 तो वो आएगा 792। तो 792 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 6 6 660 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 9s are 63, 3 remainder, okay, 30, 7 4s are 28, 2 remainder, 20, 7 2s are 14, 6 remainder, 16, 7 8s are 56. So 94.28 meters square. This will be the area of major sector. So sum is done. क्लियर नहीं पूछा था तो हमने दोनों ढूंढ दिए, माइनर एंड मेजर। क्लियर पूछा होता तो एक ही ढूंढते। तो ऐसे हर बार होगा। 14 सम्स टोटल है इस एक्सरसाइज में, तो अलग अलग टाइप का डेटा दिया होगा और उस पे से हमको बस यही सेक्टर सेगमेंट या आर्क, 3 चीजें ही हैं। तीनों में 2-2 है ना, मेजर माइनर, बट चीजें 3 है, सेक्टर, सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो ये 6 फॉर्मूलाज जो हमने 5-7 मिनट पहले बोर्ड पे लिखे थे, वो अगर आप याद कर लें तो सम्स बस ऐसे ही होंगे। सारी चीजें ऑलमोस्ट दी होंगी, आर बी, थीटा बी, एवरीथिंग। सिर्फ आपको ये आंसर्स ढूंढने होंगे। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट सम। Now dear students, because of the time limitations, we are ending this session here. Next time when will we meet? We will not talk about formulas and explanation. इस लेक्चर में हमने सम एक ही किया, बट हमने अपने कंसेप्ट क्लियर किए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सारे फॉर्मूलास याद रह जाएं, सम्स आर जस्ट फॉर्मेलिटी। Okay, so we are winding up today's session here. Thank you so much for listening. Have a very good day. Take care of yourself and yes, stay home, stay safe. Okay, thank you.